Please go ahead, sir. We are live now. The program is divided in two parts. One is inaugural and awards, and the second is panel discussion. Will be soon joining with us. We are honored to have with us Her Excellency Susri Anusuya Uke, Honorable Governor, Government of Chhattisgarh, one of the most humble leaders I met in recent past. Will be also joining with us Sri Mahesh Poddar, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, a visionary leader and true advocate of common man. It's our great pleasure to welcome Sri Kirti Azad, member 1983 Cricket World Cup team, a great inspiration to the youth of our nation. I would also like to welcome Dr. Vikrant Narwal, Head of Research and Development and Training, OK Life Care Private Limited, deliver the industry address. Honored to have with us Mr. Manu Seth, CEO, Speaking Minds, Inc., who will be the session chairman for the technical session. Thank you. In today's technical program, we have experts joining like Dr. Pramod Kumar, Founder, President, ISBM Group, Dr. Vikrant, Dr. Dheeraj Singh, M. Private, Mr. Sushil, Chairman, Skill Council, Jharkhand State Development, and Chairman, International Institute of Aviation. Dr. Vishal Rajgari, Director, FineCure. They will share their expert views and their inspired journey to motivate the youth of country. It's my pleasure to request Dr. Vikrant Narwal, Head of Research and Development and Training, OK Life Care Private Limited, to deliver the special address. He's an entrepreneur and driven leader, 20 years of leading expertise, proven marketing and network skills, building fruitful partnership with thousands of clients, and delivering multi-dollar bottom line growth. Known for developing new markets and products for new markets. Over to you, Dr. Vikrant. Dr. Vikrant? It seems Dr. Vikrant is facing technical problem. Dr. Vikrant, can you hear us? Hello. Hello. Start. Yeah, Dr. Vikrant. For inviting us, Mr. Bhar Jaiswal ji, and I'd like to welcome all of you. सबसे पहले तो मैं Honorable Governor साहब, respected now sports, Mr. Kirti Azad ji, and जितने भी की हमारे लीडर्स हैं आज की इस मीटिंग में, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ. तो we are leading
we are leading in research and development of new material segment. Basically की मैं बात करूं एज ए R&D पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडियंस हमारी एंशियंट चीजें थी, लाइक जो हमारे स्पाइसेस थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो यूज करते थे, उनके जो बायोएक्टिव कंपोनेंट है, या वो जिस तरीके से एक जिस व्हीकल के थ्रू, जिस वेक्टर के थ्रू यूज करते थे, उसी को इंटैक्ट करने का काम एज ए ओके लाइफ केयर R&D टीम ने किया है। आप देखें तो हमने यदि प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया जाए तो या कॉस्मेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो कॉस्मेटिक्स के बारे में ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो बेसिकली यूज करते थे, जो वो खा सकते थे वही वो स्किन पे अप्लाई कर सकते थे। बट ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल, अच्छा दिखना, कलर कॉस्मेटिक्स ने उसकी जगह ली। बट राइट नाउ हम उस पर्सनल केयर में भी ऐसी चीजें, ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है जो दोबारा से एंशिएंट प्रैक्टिस एक मॉडर्न तरीके से सेफ्टी वाइज यूज किया जा सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वी आर राइट नाउ वी आर लीडिंग एज ए रिसर्च पॉइंट में बात करूँ तो एंशिएंट सेफ्टी वाइज कैसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को, या आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में। विक्रांत जी, मैं आपको दो सेकंड के लिए हमने सबसे ज्यादा मैं 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, बिकॉज वी हैव विद अस ऑनरेबल गवर्नर फ्रॉम छत्तीसगढ़। विक्रांत जी, मैं 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन। इट्स अ ग्रेट प्लेजर मैम दैट यू केम डाउन। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारा सौभाग्य, बहुत बहुत आभार मैम आपका कि आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए। ओवर टू यू विक्रांत। आपने मुझे आपके इस कार्यक्रम में बुलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं 2006 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा थी तो मैंने दिल्ली में अटेंड किया था आपका, जब वो मैडम हुआ करती थी सचदेवा या कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो चेयरमैन थी इसकी एसोचैम की। तो मुझे इस मामले में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है, सभी से मैं मुलाकात किया था मैंने। और मुझे ये तो खैर आपका एसोचैम जो है बहुत बड़ी संस्था है, और इसमें देश के वो जाने माने उद्योगपति, व्यापारी लोग का ये संस्था है, जहां पर जुड़कर आप लोग देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। So ma'am, we will be again going to our industry speaker, जो भाषण चल रहा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विक्रांत जी को। विक्रांत जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच। एंड दोबारा से मैं ऑनरेबल गवर्नर मैडम का आज की इस वेब मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूँ। मैम, आपका हम स्वागत करते हैं। हम बेसिकली हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन मॉडर्न साइंस, और क्या हमारा एक ही चैलेंज था जब हम एज ए ओके लाइफ केयर इस सेगमेंट में काम कर रहे थे कि क्या हम, क्योंकि हम फादर ऑफ आयुर्वेदा माना जाता है, हमारे यहाँ नेचुरोथेरेपी, हमने पूरे विश्व को का हम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, क्या उन सारी चीजों को हम जो हमारी एंशिएंट चीजें थी, जो इतनी सेफ थी, इतनी अच्छी थी, क्या उनको आज हम मॉडर्न रूप से तैयार कर सकते हैं? उनके बिल्कुल नेचुरल उनकी जो बाय एक्टिविटी थी, जो बॉय पोटेंसी थी, जो उनकी पावर थी, उनको इंटैक्ट करके क्या हम रख सकते हैं? इन्हीं चीजों पे हमने काम किया। हमने डेवलप किया पहला प्रोबायोटिक टूथपेस्ट इंडिया में, हमने डेवलप किया पहला हर्बो फूड्यूटिकल, जिसमें आयुर्वेदा और फूड सप्लीमेंट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमने डेवलप किया। क्योंकि आज यदि पैटर्न ऑफ डिजीज, बर्डन ऑफ डिजीज आप इंडिया जैसी कंट्री में हमारी में देखेंगे तो आज यहाँ नॉट ओनली डेफिशिएंसी पे लोगों का दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लाइफस्टाइल की ऐसी चीजें आ रही हैं जो इन्फेक्शन नहीं है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो गए हैं। तो यहाँ अकेला हम अब आयुर्वेदा और आयुर्वेदा से नहीं चल सकते, क्योंकि जब आयुर्वेदा अकेला काम करता था तब हमारी बॉडी में वो कैल्शियम, आयरन, विटामिन यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं थी। तो इससे हम आयुर्वेदा से बहुत सारी रिजल्ट ले पाते थे। बट राइट नाउ द डेफिशिएंसी लेवल ऑफ द पीपल राइट नाउ इन इंडिया, वो कैल्शियम का भी बढ़ा है। आप देखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी
बहुत ज्यादा इंडिया जैसी कंट्री में है। तो ये बहुत ICMR के डाटा, WHO के डाटा को आप यदि कोट करना चाहेंगे, तो हमने वो साइंटिफिकली सारी चीजों को एनालाइज करके 3 चीजों पे बेसिकल काम किया है। पहले का लोग जो लोग 100 ईयर हम सुनते थे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो जिंदगी होती थी वो 100 साल जीते थे, वो कैसे लीड कर पाते थे, वो कैसे लीडर थे लाइफ स्टाइल के अगेंस्ट। उनका 3 बेसिक चीजें थी। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट उनकी डाइट में था, डाइटरी फाइबर उनकी डाइट में था, और प्रोबायोटिक्स उनकी डाइट में था। ये 3 चीजें थी जिसके कारण उनका जो जीवन था वो बहुत लंबा चलता था। वो लीड कर पाते थे हर अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो विक्रांत उनके जी, चैलेंजेस अगेन रहते थे सबको हम लीड लोग कर पाते आपसे थे। बहुत सारी बातें करना चाहेंगे विक्रांत जी, फॉर द टेक्निकल सेशन आल्सो, बट वी आई लाइक टू वेलकम मिस्टर महेश पोद्दार, जो हमारे MP हैं झारखंड से, वो भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर गए। सर बहुत बहुत वेलकम, बहुत आभार आप इस शेड्यूल से लेके आए समय सर। So we'll be moving to Mahesh Poddar within a while after we have Mr. Kirti Azad here. So Mr. Kirti, who needs no introduction, a true leader and an achiever who has made India proud by making it cricket world champion in 1983. Mr. Kirti Azad, a former cricketer, he was the elite member of 1983 winning squad of the country. Mr. Azad was born in Darbhanga, Bihar. He was an aggressive right-hand batsman and the quickest off spinner. He was also member of Lok Sabha. We request for your valuable insight on today's discussion on leadership excellence. Over to you, sir. सर आपको अनम्यूट करना होगा सर आपको। Can you hear me now? आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया अनुसुईया जी और इस पैनल में सभी बैठे हुए उद्योग कर्मी और एसोचैम के सदस्यगण, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबों ने आज हिंदी में वार्तालाप की है, अन्यथा मैं भी सोचता था शायद मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़े। दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी हमारी भाषा है और उसको जितना ज्यादा लोकप्रिय किया जा सके उतना उचित होगा। दूसरी भाषाओं का भी पूरा मैं आदर करता हूं। आपने आज लीडरशिप समिट में मुझे बुलाया है। मैं सदैव इस बात में विश्वास करता हूं कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, एंड यू कैन सी देम फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। आप बचपन से देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर 4-5 बच्चे इकट्ठे हैं या स्कूल में हैं तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो मार्गदर्शक बनता है। जरूरी नहीं कि बड़े होकर जब हम लोग सीख जाते हैं और उतना कुछ समझदार हो जाते हैं तो लोगों को सीख देते हैं, लेकिन लीडरशिप अपने आप में आती है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि एक प्रोफेशनल और एमेचर में क्या अंतर होता है। अ प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु गेट्स द मोमेंट, टेक्स इट एंड थिंक्स अबाउट इट लेटर। एन एमेचर इज अ पर्सन हु गेट्स द मोमेंट, थिंक्स अबाउट इट, बाय द टाइम ही थिंक्स अबाउट इट द मोमेंट्स गॉन। मैंने जिंदगी में सदैव जब भी कभी मौके मिले तो उस मौके को सहज ग्रहण किया और मेरा प्रयास सदैव रहा कि उस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाऊं और उठा करके जो लाभ चाहे मैं क्रिकेट खेलता हूं उसमें दे सकूं, परिवार को दे सकूं, समाज को दे सकूं, जिसको दे सकूं दिया जाए। क्योंकि जब कभी भी किसी को अवसर मिले और वह उस अवसर को ना ले तो उसका फायदा नहीं। फिर हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं। जानवर को खाना चाहिए, उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए, तो वो घर पर रखवाली भी करेगा, आपको दूध भी देगा, आपके लिए मेहनत भी करेगा। एक इंसान के लिए बहुत आवश्यक है 4 चीजें, और 4 डीज में विश्वास करता हूं। अगर कहीं भी लीडरशिप आप एक से एक लीडर उठा करके देख लीजिए, वह केवल अपने बोलने पर नहीं चलते। जो केवल अपने बोलने पर चलता है वह हुक्मरान होता है, ही इज अ डिक्टेटर। लेकिन जो लीडर होता है वो सभी लोगों के सुझाव लेकर जो उसे बढ़िया लगते हैं या सबों को मिला करके उसको आगे बढ़ता है, जिससे कि उसको टीम का फायदा हो। मैंने जीवन में सदैव 4 डीज को फॉलो किया है: डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डिजायर यानी अभिलाषा। और जब मैं छोटा था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी और आप सबों ने भी पढ़ी होगी जब आप 5वीं-6वीं में रहे होंगे, पुष्प की अभिलाषा। और वो पुष्प की अभिलाषा बोल नहीं सकता, हम उसको खुशबू और उसके रंग से पहचान सकते हैं। लेकिन
देखिए कैसे कवि ने उस पुष्प की अभिलाषा को बताया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी कि बहुत ही सुंदर महिला के मैं गहनों में, उसके बालों में नहीं गूथा जाता हूं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवताओं के सिर पर बैठ इठलाऊं, ए वनमाली मुझे उस राह पर तुम देना फेंक, जिस राह पर शीश नवाने जाए देश के वीर अनेक। यह उस पुष्प की अभिलाषा है। उसी प्रकार से किसी भी इंसान को आगे पहुंचना हो तो उसके अंदर एक अभिलाषा होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप में वो क्वालिटीज हैं लीडरशिप की, तो आप उस अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं अपने दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप चाहे मन में कुछ भी अभिलाषाएं रखें, आप वहां पहुंच नहीं सकते, आप वो लीडरशिप कर नहीं सकते हैं। और वो कैसे होगा? विथ डेडिकेशन, साधना, डिवोशन। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त दिशा। करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आप उतना कुछ नया सीखेंगे, आप उतना कुछ लोगों को आगे बढ़ करके नया सिखाएंगे। इसलिए डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड अबव ऑल इज डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो आप समझिए कि आपका शरीर भी नहीं रहेगा। आप ये समझिए कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो लीडरशिप करना चाहते हैं, वो नहीं रहेगी। जब आप में खुद ही अनुशासन नहीं होगा तो आप दूसरों का अनुशासन कैसे करेंगे? यदि आप किसी एक के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ चली आती हैं। इसलिए आवश्यक है कि यू फॉलो दीज 4 डीज। और अल्टीमेट डी क्या है? देश। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैंने 2 कप्तानों के अंतर्गत भारतीय टीम में खेला, वैसे बहुत कप्तानों के अंतर्गत खेला। एक थे सुनील गावस्कर और एक थे कपिल देव। कपिल देव मेरे कप्तान 1983 विश्व कप के थे, जब हम लोग वो विश्व कप जीते थे। मैं आपको एक उनकी कहानी बताता हूं। हम सेमीफाइनल पहुंच गए थे 1983 विश्व कप में। किसी ने नहीं सोचा था कि हम विश्व कप पहुंचेंगे। 8 टीमें खेल रही थी। हम 7वें पायदान पे थे नीचे से, जो हमें वहां के बुकीज ने थे, उन्होंने दिया था कि 1 पाउंड लगाओ और 99 पाउंड ले जाओ, मतलब जिम्बाब्वे से ऊपर थे जीतने के लिए, बाकी हमारी कोई चांस नहीं थी। एक केवल कपिल देव था हमारी पूरी टीम में, जो यह सदैव मन में उसको मालूम था शुरू से लेकर अंत तक कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम विश्व कप जीत सकते हैं। जबकि हमारे पास ऐसी टीम नहीं थी, कपिल और सुनील गावस्कर को छोड़कर और कोई हमारे पास उस अंतरराष्ट्रीय स्तर का नामी ख्याति प्राप्त कोई खिलाड़ी नहीं था। लेकिन वेस्ट इंडीज में थे, ऑस्ट्रेलिया में था, इंग्लैंड में था, न्यूजीलैंड में था, यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर उतने अच्छे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन हमारी टीम में वैसे प्लेयर्स नहीं थे। और वह केवल आदमी, उसका नेतृत्व, उसके नेतृत्व ने हमें ले जाकर विश्व कप को जिताया। 17 पे 5 विकेटें गिर चुकी थी, गीली विकेट थी, टनब्रिज पे खेल रहे थे और मैं 12th मैन था उस मैच में। और मैं उनका बैट लेकर के गया था। मैंने कहा भाई बड़ा संभल के खेल रहा है कपिल, क्या बात है? बोला कोई बात नहीं, एक रोक के एक ठोक के 60 ओवर पूरे खेलेंगे तो रन बनेंगे। और उसके बाद जो उसने मचाया खेल, मतलब दिवाली हो गई वहां पर हमारे ऊपर। उस पर फिल्म भी आ रही है और 4 जून को रिलीज भी होगी, जरूर जाकर देखिएगा। स्टोरी ऑफ अंडरडॉग्स, जो जिनके बारे में कभी भारतीयों ने भी सोचा था कि यार खत्म हो जाएगा। हमने सोचा था कि राउंड रॉबिन मैचेस खत्म होंगे, सेमीफाइनल में हमने पहुंचना नहीं है। हम में से जो इंग्लैंड में खेले थे इंग्लैंड में रह गए, बाकी लोगों की टिकटें कटी हुई थी कि वो अमेरिका जाकर के वहां कुछ एग्जीबिशन मैचेस खेल के आएंगे। लेकिन आप देखिए कि कपिल की सोच, टीम का एक साथ जुड़ना, सबका इंडिविजुअली उसमें योगदान होना, कपिल का उन सभी खिलाड़ियों का जितनी जैसी जिसकी क्षमता थी उसको सबसे बढ़िया तरीके से उपयोग करना और सामने लाना, ये होती है लीडरशिप। और उस लीडरशिप को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वो टीम को लेकर के आगे आए, वह असल मायने में हम सबों को जीत की ओर लेकर के गया। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि अगर कहीं भी लीडरशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ डिजायर, यू मस्ट हैव अ डिटर्मिनेशन, यू मस्ट हैव डेडिकेशन और डिवोशन और एंड डिसिप्लिन व्हिच टेक्स यू टू द अल्टीमेट डी व्हिच इज देश। तो आपने मुझे लिख करके भी भेजा था लीडरशिप समिट है और ऐसा है भाई साहब, मैंने तो स्कूल में भी किताबें नहीं पढ़ी, तो मैं आपका वो कहां पढ़ता। और जब लीडरशिप की बात थी तो फिर मुझे अपनी बात रखनी थी। और जब लीडरशिप सबकी, लेकिन जो सबसे बढ़िया सुझाव हो या 2-4 सुझावों को एकत्रित करके आगे बढ़ना हो, वही असली लीडरशिप होती है। और उसके लिए जितने भी महामहिम यहाँ लोग बैठे हैं, जिनके अच्छे अच्छे अपने बड़े बड़े व्यवसाय चलते हैं या दूसरे काम करते हैं, सोशल वर्क में रहते हैं, वो केवल इसलिए है क्योंकि आपका विजन रहा है कोई चीज करने का। अभी विक्रांत जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला प्रोबायोटिक, उनको ये भी पता होना चाहिए कि प्रीबायोटिक भी बहुत जरूरी होता है प्रोबायोटिक को अच्छा चलने के लिए।
तो उसके लिए भी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अध्ययन बहुत करता हूं, पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। और यदि कहीं पर मैं जाकर बोलता हूं तो मैं एक चीज में जरूर सर, जरूर जरूर आपका सुझाव लेंगे सर। और लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। इट्स, एक बार चर्चिल ने कहा था, इट्स बेस्ट टू कीप क्वाइट एंड थॉट टू बी अ फूल रादर देन ओपन योर माउथ एंड प्रूव इट। इसलिए मैं जब कभी भी किसी चीज के बारे में बोलता हूं या बताता हूं तो मैं उसकी पूरी जानकारी रखता हूं, अन्यथा लोगों को ये सोचने देखता हूं कि वो मुझे बेवकूफ समझे, बनिस्बत की मुंह खोल के मैं दुनिया को बता दूं कि मैं सच में बेवकूफ हूं। तो मैं एक बार पुनः आपका एसोचैम झारखंड का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया और इस लीडरशिप पर मुझे बोलने का दिया। और सबसे ज्यादा तो हमारे महामहिम अनुसुईया जी यहाँ पर हैं। माँ अनुसुईया का नाम तो सुनकर मन विभोर हो जाता है। आप सामने बैठी हैं, मातृशक्ति हैं। कल वुमेन्स डे था, तो आज आपको उसकी एक दिन लेट ही सही, लेकिन आपको आज वुमेन्स डे की बहुत बहुत, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद sir. After this inspiring words from one of the legends we have in the country, now I would like to welcome Mr. Mahesh Poddar, Member of Parliament, Rajya Sabha, Jharkhand, to deliver his speech deliberation. Mr. Poddar is a member from Jharkhand constituency. He is currently the state treasury of the Bharatiya Janata Party and also an industrialist from Jharkhand. A well-known businessman, he started his career with establishing Mickey Wire Works Private Limited in the year 1977 in Mahilong, Ranchi. In the career span of almost 40 years, he has expanded his Mickey Wire capacity to all parts of the country. Popularly known for his simplicity, he is a grassroots leader and a very popular face in the state. Over to you, MP sir. MP साहब ने हमें अपना समय दिया in spite of being in the technical session. अभी पता है जो सेशन पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, so he is on his way, so that's the reason he is facing some technical issues. Definitely he is there and we'll be waiting for another 2-3 minutes for him. Yeah, what we'll be doing, like since he's on his way and there is a network problem, so we'll be moving ahead. So now the moment has come to welcome the chief guest, Susri Anusuya IK, Honorable Governor, Government of Chhattisgarh. भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराएं और आधुनिकता, परिपाटी और बदलाव साथ साथ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो एक सशक्त महिला, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए समाज में समाज को बदलने का काम किया और खासकर जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती रही। और इसी उद्देश्य से वो समाज सेवा शुरू की। सामाजिक सेवा से वो राजनीति में आई और वह एक संवैधानिक पद पे आसीन है। मैं आज स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की पहली महिला आदिवासी गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके। आपकी गरिमा उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैम, ओवर टू यू।
स्टार्ट करूं मैं? जी मैम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एसोचैम द्वारा जो आयोजित वेबिनार नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट एंड अवार्ड्स ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस 2021 के इस वर्चुअल मीटिंग में जो है सम्मानीय श्री कीर्ति आजाद जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सदस्य 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम के सदस्य भी रहे हैं। सम्मानीय श्री महेश पोद्दार जी, जो झारखंड में राज्यसभा के सांसद हैं। श्री भरत जायसवाल, जो कि क्षेत्रीय निर्देशक एसोचैम, और यहाँ पर जो श्री विक्रांत नरवाल जी, ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और इस वर्चुअल सेमिनार में जुड़े हुए सभी उद्योगपति गण, व्यापारी गण और सभी सम्मानित हमारे जो यहाँ पर शामिल होने वाले सभी सम्मानित भाइयों, मुझे एसोचैम द्वारा आयोजित इस वेबिनार में शामिल होते हुए बड़ी खुशी हो रही है। साथ ही इस अवार्ड्स ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस 2021 के आयोजन के लिए एसोचैम को मैं बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लीडर्स को पुरस्कृत किया जा रहा है जिनके कारण इनकी संस्था को नई दिशा मिली। मैं उन सभी प्रबुद्ध जनों को शुभकामना देती हूँ। मैंने अभी माननीय श्री कीर्ति आजाद जी के विचारों को सुना और बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने मुझे कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में बधाई दी। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरी ओर से भी आप भाभी जी को, वो एक बहुत ही क्रांतिकारी और एक अच्छी समाज सेवा है, लीडरशिप उनमें है और बहुत अच्छा सोशल वर्क करती है। उनको भी मेरी ओर से उन्हें भी बहुत बहुत बधाई दीजिएगा आजाद जी, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी एक दो बार उससे मुलाकात हुई थी और सुना करती थी नाम, और कभी ऐसा मौका उनके साथ ज्यादा नहीं मिला मुझे, लेकिन उनकी मैं बहुत प्रशंसक हूँ। और आज इस वेबिनार में मुझे आपसे भी मिलने का मौका मिला है। हम वास्तव में लीडर अर्थात नेतृत्व की बात करें तो यह वह व्यक्ति होता है जिसके कारण किसी संस्था या देश या किसी कार्य को दिशा मिलती है, जिसके कारण ये देश को स्वतंत्रता मिली, कोई देश प्रगति के शिखर में पहुंचा, किसी संस्था को आगे बढ़ाने की राह दिखी। बिना नेतृत्व के कोई भी संस्था दिशाविहीन हो जाती है। सार्थक नेतृत्व ही एक उत्कृष्ट रचना को जन्म देता है। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अनेक महान नेतृत्व पैदा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसी तरह से शिवाजी महाराज की बात करें, जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता के बदौलत एक साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही तत्कालीन समय के लिए प्रेरणा बने। हम यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने अपने नेतृत्व के दम पर वह कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए एक तस्वीर बन गई। उस समय जब पूरा देश गुलाम था, तब भारतीयों को सत्याग्रह और अहिंसा का उपयोग करना सिखाया। उसी की बदौलत हमारे देश को आजादी मिली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं, जिनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, मैं आयोग के काम को बखूबी से निर्वहन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। उनके नेतृत्व में कोरोना काल में एकजुट होकर मुकाबला किया, और आज इस बीमारी की वैक्सीन आ गई है। तब उन्होंने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन प्रदान कर हमारे देश को पूरे विश्व में स्थापित किया। आज पूरा विश्व उन्हें सम्मान की नजरों से देखते हुए धन्यवाद दे रहा है।
लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि नेतृत्व का गुण एक दिन में नहीं बनता, जिसके लिए समर्पण, लंबा संघर्ष और त्याग की भावना की आवश्यकता होती है। वही नेतृत्व सफल होता है जो दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा की मदद करता है। मैं स्वयं बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन जब मैं ग्रामीण परिवेश से बाहर निकलकर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने शहर आई तो वहां पर परिस्थितियों को महसूस किया, जिसकी बदौलत कॉलेज छात्र संघ चुनाव में निर्वाचित हुई और विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान किया। मैंने छात्र जीवन में मैंने एक ऐसी संस्था को भी ज्वाइन किया था जहां पर एक लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता कैसे पैदा हो। मैं रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा में मैं चेयरमैन थी उसकी, और इस संस्था से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वहीं से मेरी नेतृत्व क्षमता की मतलब वहां से मुझे मिली, और जिसके वजह से मैं छात्र राजनीतिक जीवन में छात्र संघ के चुनाव में पहली बार मैंने चुनाव जीता और एक नेतृत्व किया। और उसके बाद में सहायक प्राध्यापक के रूप में कॉलेज में मैंने 3 साल पढ़ाया। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, और फिर वहां पर मैंने अध्ययन प्राध्यापक के रूप में जब मैं कॉलेज गई तो वहां पर जो एक अध्ययन करते समय स्थानीय लोग, वहां से मेरा छिंदवाड़ा से करीब 55 किलोमीटर एक ग्रामीण दूर दराज जो पूरा ट्राइबल ब्लॉक था, वहां एक नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था। पहला अपॉइंटमेंट लेकर मैंने उस कॉलेज में ज्वाइन किया, और उस क्षेत्र में मैंने खुद लोगों से, मैं स्टूडेंट को लेकर जाती थी और देखती थी उस गांव में लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, क्या उनकी समस्या है, किस तरह से ये तमाम चीजों को मैंने वहां पर महसूस किया। उन सभी परिस्थिति को देखकर सार्वजनिक जीवन में जाने का निश्चय किया, और शायद मुझे कभी सोचा भी नहीं था ये लीडरशिप, एक नेतृत्व की क्षमता का लोग मुझे उस क्षेत्र में और कॉलेज में मैं बहुत लोकप्रिय हो गई थी। और सबसे कम 26 की एज में मैंने पहली बार एमएलए का, विधायक का चुनाव लड़ा। शायद मैं सोच नहीं सकती थी, और उसी पहला ही चुनाव में मैं विजय हुई। और उसके बाद बहुत कम एज में 27-8 के बीच में भी 28 की उसमें मैं मिनिस्टर भी बन गई। उस समय अर्जुन सिंह जी जैसे धाकड़ नेता एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके मंत्रिमंडल में मैं शामिल हुई। और आपको शायद ये बता दूं कि मेरा उस समय का जो जुझारूपन था, जो जुनून था, और एक मैं इसलिए लोकप्रिय हो गई कि जो एक लीडरशिप जो है, एक नेतृत्व की क्षमता, कैसे आप समाज की बात को हाउस के अंदर उठाते हैं, आप बोलते हैं, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यही चीजों को लेकर लोगों में एक अपने आप में मेरा अपना लोगों के प्रति एक विश्वास भी जागृत हुआ। उस समय मेरे सामने कई चुनौतियां आई, पर मैं हिम्मत नहीं हारी और वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सामना करती रही। मेरे जीवन में कई परेशानी आई, परंतु हिम्मत नहीं हारी और निरंतर अपने कार्यों में लगी रही। विभिन्न दायित्वों के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश एसटी कमीशन की मैं अध्यक्ष रही, और विभिन्न पदों का जो है, और आज मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में राज्यपाल हूँ। मुझे वास्तव में ये सारी चीजों की मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं कभी राज्यपाल भी बनूंगी। राज्यपाल के रूप में आज 1 साल 7 महीने मेरे अधिक हो रहे हैं इस छत्तीसगढ़ राज्य में। इस दौरान मैंने प्रयास किया कि एक राज्यपाल नहीं, एक पालक के रूप में कार्य किया और हर जरूरतमंद की समस्या को समझने और समाधान करने की कोशिश की। मैं आपको ये जानकारी जायसवाल जी बताना चाहती हूँ कि शायद मुझे यकीन नहीं था, इन 6 महीने तो मेरा कोरोना काल में चला गया, और बाकी अभी मतलब मुश्किल से 1 साल के अंदर जो मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड का एक मुझे सम्मान मिला। 10,000 लोगों से मैंने राजभवन में, लोगों ने पहली बार मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात की, और शायद
लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते थे कि राजपाल क्या है और क्या उनकी वर्किंग है, आम व्यक्ति से मिलते हैं नहीं मिलते, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के लोग कभी राजभवन के पास भी मतलब वो नहीं आ पाते थे और ना सोचा था कि राजपाल क्या है। तो मैंने ये परंपरा को तोड़ दिया और ये पहली बार आम पब्लिक के लिए मैंने राजभवन के दरवाजे खोल रखा है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरे अगर गेट पे आ जाता है तो मैं उससे अंदर बुला लेती हूँ और एक विश्वास उसके अंदर पैदा हुआ कि हाँ कोई है हमारा संरक्षक जो हमारी भावनाओं को समझता हो या सुनता है, अगर मिलकर उसको अगर इतना संतुष्टि मिलती है तो मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो ये जो चीजें मैं आज यहाँ पर कर रही हूँ, एसोचैम पूरे भारत वर्ष में उद्योग समूह के संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही यह समय समय पर देश के व्यापार और वाणिज्य उद्योग समूह को अपने सुझाव के द्वारा उचित दिशा और प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जिसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ। साथ ही मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम में समाज की युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलेगी तथा नेतृत्व क्षमता विकास के लिए उच्च मापदंड स्थापित करने में सफल साबित होगा। अंत में सभी सम्मानित होने वाले लीडर्स को पुनः शुभकामना देती हूँ और आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे 2006 या 7 में आपके दिल्ली में ये कार्यक्रम मैंने अटेंड किया था। मुझे पुरानी वो तमाम सारी चीजें और सभी उद्योगपतियों से मुझे मिलने का मौका मिला था। अब आगे भविष्य में भी जब भी आप मुझे याद करेंगे आपके कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी। किसी दिन आप हमारे छत्तीसगढ़ भी पधारिए, यहाँ भी इस तरह से बहुत उद्योगपति है। हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य, यहाँ के लोग बड़े सहज और सरल है। मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम करें। आपका यहाँ मैं स्वागत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस एनकरेजिंग वर्ड एंड एसोचैम मैम और हमारे जो सुमित सुशीलन जी जो है यहाँ पे चेयरमैन फॉर स्किल सेक्टर, ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, वो भिलाई से है। सो आई थिंक ही विल बी टेकिंग फॉरवर्ड और हम लोग कुछ एक्टिविटीज प्लान करेंगे मैम इन द फार फ्रंट पार्ट ऑफ Definitely, we are looking forward. continued support. Sure. And with due permission from Her Excellency Srimati Honorable Governor and Mr. K.K. Azad, we are going to the next part of the program, which is the part of the occasion is to felicitation. And with a deep sense of gratitude on behalf of ASSOCHAM, to recommend work which is being done and organized throughout the country for making India a global leader hub, and to felicitate them is just a thanksgiving on behalf of ASSOCHAM. A gesture to thank them for all selfless work and state commitment on their part. We received many nominations from the hook and corner of the country, and it was transferred from our jury members to 7 of them, 8 of them. Our eminent jury member consists of Dr. Sri Ranjan, IAS, retired, Mr. R.K. Bajaj, IRS, retired, Mr. Ashok Kumar Pavadia, IRS, retired, Professor M.K. Vajpayee, Vice Chancellor, Capital University, Mr. Partha Pratim Majumdar, Chairman, ASSOCHAM Skill Development Council, Eastern Region. Our one of the jury member is also present with us right now, Dr. Sumit Susilan, Chairman for International Institute of Aviation, Mr. Nakul Sardala, NS. Wait is almost over, and here I do announce the winner of the prestigious awards. Anup, hope you have a slide ready with you. So the first award for ASSOCHAM National Leadership Excellence 2021 Healthcare goes to OK Life Care Private Limited.
The second award for the ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards 2021 Outstanding Startup goes to a startup based at Chandigarh, WERI Life Products Private Limited. ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards 2021 Skill Development / Vocational Training goes to is based at Hyderabad. ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards for Best B School goes to International School of Business and Media. ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards 2021 Best for Aviation Sector goes to Institute of Training. ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards 2021 Life Sciences Skills and Vocational Training Program Award goes to City Minds, Tinet Healthcare EduTech Private Limited. ASSOCHAM National Leadership Excellence Award Pharmaceutical goes to Finscure Pharmaceutical Limited. ASSOCHAM National Leadership Excellence Awards for Best University of the Year award goes to last and most prestigious Ganpat University. We are closing the first part of the program, that is the inaugural, and we move to the next part of the program, that is the panel discussion. I would like to congratulate all the awardees, and what we'll be doing, we have with us our colleague from Western Regional Office, Mr. Vipul, to talk about a brief vote of thanks on behalf of ASSOCHAM. So I hand over the stage to Mr. Vipul. Vipul ji, क्या आप सुन पा रहे हैं? Sir, you are on mute. Yeah. Can you hear me, Bharat? Yeah, Vipul, please, over to you. Yeah. Thank you, Bharat. Thank you so much. It's a matter of great honor and privilege to extend a vote of thanks to all the dignitaries present here in today's session. First of all, I would like to propose my heart of thanks to our chief guest of the session, Sushri Anusaya Uike, Honorable Governor of Chhattisgarh. मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमें अपने वर्ड से इंस्पायर किया. I would also like to thank our guest of honor for today's session, Shri Mahesh Poddar ji, Member of Parliament, Rajya Sabha from Jharkhand, and Shri Kirti Azad ji, who is the winner for Cricket World Cup 1983. नमस्कार सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. I was just asking you to for a brief, because Mr. Mahesh Poddar, and we are all ears looking forward to hear from you, sir. Sir, over to you, please. Sir. Yeah. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Can I start? Sure, sir. You can go ahead, please. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Yes, sir. You're audible. Hello. Yes, sir. You're audible, sir. अच्छा, तो So you are having some network problems, sir. It seems. Yeah, so what actually मैं parliament में हूँ, parliament सही है, parliament So, sir, आप audible है, sir. आप audible है, sir. Please, sir. के लिए मैं इधर सुन रहा हूँ, इसकी परेशानी हो. देखिए, पुरानी मेरी कितनी बात आप तक पहुँच है. अच्छा, अगर
you keep mind manage with okay. तो अभी जैसा मैं कह रहा था कि लीडरशिप कार्यक्रम का क्या है कि मैं बहुत सारे एक लंबे क्योंकि मेरा अगर लीडरशिप से ज्यादा I have done and gone through बिजनेस लीडरशिप का अनुभव मुझे ज्यादा है पॉलिटिकल और मैं उन समाजशाही में नहीं हूँ जैसा हमारे बड़े भाई हैं जिन्हें इन्हें पॉलिटिकल लीडरशिप विरासत में भी मिली और उन्होंने खुद भी कमाया और बखूबी कमाया अपने क्षेत्र में उन्होंने काफी नाम भी कमाया तो मैं एक बहुत साधारण छोटी जगह है अच्छी जिस समय और वहाँ के सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा तो मेरी एक मैं कीर्ति जी को सुन रहा था बस उतना ही सुना कि लीडर्स आर नॉट आर बॉर्न थोड़ा मैं डिफर करूंगा मैं समझता हूँ कि लीडर्स आर मेड ऑल्सो और उस बनने की प्रक्रिया में कुछ मित्रगण कुछ It seems it seems the network problem अभी भी है वहाँ पे MP साहब के यहाँ so sir हम आपको देख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं So we can see you, but we are not able to hear you, sir. आगे बढ़ाओ भाई So I'll be asking my colleague Mr. Vipul to propose the vote of thanks. It seems that we have lost Mr. Mahesh Poddar due to some technical error. Vipul, are you there? Yes, Bharat, I think there is some serious technical issues. Not an issue. You just be in touch with Honorable MP of Rajya Sabha, sir, so that further in the session he may join again. Yeah, over to you, Vipul. Yeah. So I also would like to thanks Dr. D.K. Sharan, CEO, OK Life Care, for being a part of this program. Our session chairman, Sri Manu Seth, Chairman, ASSOCHAM, Jharkhand State Environment Development Council and CEO, Speaking Mind Zinc, and other key speakers of the session, Dr. Vikrant Narwal, Dr. Pramod Kumar, Sri Dhiraj Singh Ji, Dr. Sumit Susen, and who is our chairman for Jharkhand State Development Council. We are extremely thankful to our learned panelists who have agreed to be part of this Knowledge Management Virtual Meet and Award on Leadership Excellence 2021. I would also like to thank our jury who were the part of this Leadership Excellence Award, and I congratulate all the winners of ASSOCHAM Leadership
Excellence Award. I also extend my heartiest vote of thanks to our esteemed sponsors, invitees, medias, and other guests in the audience for participating in the session and making it a successful. And look forward your support, same support for ASSOCHAM, Jharkhand State Development Council, and overall ASSOCHAM. So thank you so much once again for joining. Bharat, over to you now. Thanks विपुल. सर अगर अभी आप सुन पा रहे हैं हमें एमपी साहब, तो हम लोग चाहेंगे कि आपसे जरूर एक बार फिर रूबरू हों. Just to give a brief introduction of Mahesh Poddar ji, sir. He is a well-known businessman. He started his career with establishing Mickey Wire, which is a private limited company in the year 1977 in Mahilong. Ranchi से कुछ दूर एक Mahilong गांव है वहाँ पे. And in his career span of almost 40 years, he has expanded his wire manufacturing capacity to all part of the country. So, popularly known for his simplicity, he is a grassroots trader and a very popular face in the state. Sir, can you hear us, sir? हम लोग चाहेंगे कि सर आप सर ये आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही है हमारे पास. कि हम लोग blessed हैं that you are there. Sir, it seems I would be requesting if you can remove earphone. I think that earphone हटा के speaker पे भी बात हो सकती है. There is some error in mic, I think. Yeah, it seems. I think if video is off and only audio is put on, then that could be a solution to the problem. नहीं यार. No. He's, but we are not able to hear. So what I'll be doing now, since meanwhile we'll be our IT team will be in touch with the IT person there, so that we can get it organized, so with due permission from Honorable Member Rajya Sabha, I would like to go to the next part of the program, which is a panel discussion. As we all know that we have with us Mr. Manu Seth. He is chairman for Jharkhand State Environment Development Council and CEO, Speaking Minds Inc. Mr. Manu Seth is the CEO of Speaking Minds. He is a motivated business leader with a passion for creating value, innovative and delivery technology services that have a positive impact on people's life. With over 25 years of demonstrative performance excellence in driving business scale at national and international level. So I hand over the stage to the chairman of panel discussion and request and invite Mr. Manu Seth to take it forward from here. Over to you, Mr. Seth. Thank you, Bharat. And thanks everyone. First, I would like to thanks ASSOCHAM for putting up this brilliant platform. And I would even like to welcome Mahesh Poddar Saab. So thanks, and it's our bad that we are not able to hear you properly because of some technical glitches. And what a great insightful session it was done by ASSOCHAM, where we had to hear our chief guest, Sushri Anusuya Uke, the governor of Chhattisgarh, and then we had Kirti Azad Saab talking about the 4 Ds. And that is where the topic comes about leadership, excellence. And moving on, I'm sure we have great eminent panelists with us who have been working a lot and experiencing the change of leadership, because अभी जो वक्त निकला है और जो टाइम निकला है इसमें इतने चेंजेस हुए हैं, बट इस चेंज ने एक चीज सबको ये सिखाई है कि कहीं गाड़ी रुकी नहीं. हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, कुछ टाइट हुए सिचुएशंस. उस टाइट की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट रही है हर एक के लिए. किसी का कोई प्रोडक्शन यूनिट है, किसी के कहीं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, वो जॉब्स पे इफेक्ट कर रहा है. बहुत चीजों को हम सुनेंगे, हमारे जितने भी एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, और सब लोग अपने अपने डोमेन में, अपने अपने कैटेगरीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक रुचि रखते हैं और एक सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ
हमारे लिए मार्गदर्शन पॉइंट्स रखेंगे। सो लीडरशिप पे आगे बढ़ते हुए मैं पहले शुरू करना चाहूंगा सुमित साहब आपसे दैट आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो टाइम रहा है, अब हम आगे एक अच्छे टाइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हर जना उम्मीद करता है कि आगे अच्छा टाइम आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होना चाहिए, तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि क्या इस वक्त ने लीडरशिप की परिभाषा को बदला है या लीडरशिप रिमेन्स द वे इट वाज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओवरऑल लीडरशिप का जो व्यू है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जी। जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक में अ लॉट ऑफ पीपल हैड सीन द रियलिटी, जो प्रेशर जो उन्होंने देखा है, स्पेशली एम्प्लॉयज। जैसे अभी जो आंकड़ा कहता है कि इंडिया में अराउंड 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है, तो ये जो 14 करोड़ की नौकरियां गई है, वहां पे कहीं ना कहीं लीडर्स भी हैं जो मजबूरी में इनको निकाला है इन्होंने। कोई चाहता नहीं है अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालना, पर कहीं ना कहीं एक राइट लीडरशिप जरूरत है, जहां पे हमको एम्प्लॉय का ख्याल रखना है, वहीं पे हमको अपने कंपनी का भी ख्याल रखना है। क्योंकि अगर लीडर्स अपनी कंपनी का ख्याल नहीं रख पाए तो कंपनी पूरी की तरह कोलैप्स हो जाएगी, और अगर कंपनी कोलैप्स होती है तो जहां पे हमने 50% स्टाफ निकाला वहां 100% स्टाफ अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लीडर्स लोग का राइट इस राइट टाइम की वो अपना राइट लीडरशिप दिखाए, नॉट टू बिकम अ बॉस, टू बिकम अ लीडर। जहां पे हमने बहुत सारे लीडर्स को दिखाया है जिन्होंने अप टू 80 to 90% पे कट लिया है, जिन्होंने अपने ऊपर चोट लिया है अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए, उन्होंने उनको मैक्सिमम देना चाहा। जैसे कि मैं कहूंगा कुछ बड़े कंपनियों ने ऑफिस बॉय एंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स को पूरा का पूरा सैलरी दिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि उनका जरूरत ज्यादा है। और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर लेवल में सैलरी कट के, एंड इवन द डायरेक्टर लेवल में कहीं कहीं कंपनी 90 to 100% भी कट लिए फॉर 6 months और 1 year टाइम। दिस इज राइट लीडरशिप, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि आगे हम इस एम्प्लॉयज, ये हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉयज, इनको अगर हम लोग प्रोत्साहन दें कि आगे हम आपको और अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, और इस एम्प्लॉय को ये एक गारंटी दे कि आगे चल के जब कंपनी रिवाइव होगी तो हो सकता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जाए। तो डेफिनेटली ये बहुत ये जो 1 साल के टाइम में हमको ये पता चला कि कौन कंपनीज के साथ में है और कौन नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि मतलब लीडरशिप की परिभाषा चेंज हुई और एक्शन करना बहुत जरूरी था, इस वक्त पे टाइमली रिएक्ट करना बहुत जरूरी था। राइट, कहीं कहीं पे हो सकता है कि बहुत लोगों ने बोला ये मेरे हिटलर बॉस थे, पर जब टाइम सही हुआ, धीरे धीरे जब रिक्रूटमेंट करना वापस चालू हुआ, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स ने अपना व्यू चेंज किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये राइट बॉस थे, राइट लीडर्स थे, जिन्होंने राइट स्टेप लेके मेरी कंपनी बचा ली। आज कंपनी है यहाँ पे। तो नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अभी हम आप पे दोबारा आते हैं। सो एक हमारे बीच में डॉक्टर धीरज हैं। धीरज जी, पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा फॉर द अवार्ड दैट यू हैव वन एंड द ग्रेट थिंग्स जो आप लोग मार्केट के लिए कर रहे हैं। सो डॉक्टर विशाल सर, या धीरज जी, सॉरी मुझे लगा आवाज नहीं। थैंक यू सो मच सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एसोचैम एंड ऑल द एमिनेंट पर्सनालिटी जो यहाँ पे आज मौजूद है। इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, and I'll tell you not only behind my, I will not say that I'm successful, but I'm on the verge of doing that। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन से बाहर आने की। सो बिफोर पेंडेमिक मैं भी जॉब कर रहा था। आई वॉज हेडिंग वन ऑफ द चाइनीज कंपनी। सो और मैं ऑल इंडिया हेड कर रहा था, बट वो सिचुएशन ऐसी हुई, एक तो पेंडेमिक और दूसरा जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी। एंड आई बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ आर्मी। सो माय फादर, माय एंटायर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस, मैं उसी में रहा हूँ सारी उम्र, कैंट्स में ही पढ़ा हूँ। सो वन फाइन डे वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, ही इज कमांडिंग ऑफिसर इन वन ऑफ द यूनिट इन वहाँ लेह लद्दाख में था। ही कॉल्ड मी, कह रहा है यार तुमको और कुछ नहीं मिला तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दीजिए, हम लोग देश के लिए खड़े हैं और यू पीपल नीड टू टेक अ स्टांस एंड यू हैव टू डू समथिंग। सो तो उस समय दिमाग में एक चीज आया, मे बी वी आर सेल्फिश दैट वी ओनली टॉक अबाउट आवर मनी एंड अबाउट आवर फैमिली ओनली। और कीर्ति आजाद साहब ने आज बहुत अच्छी चीजें बोली जो मैं उनसे ना बिल्कुल एग्री करता हूँ। मोस्ट ऑफ अस डिजायर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, इसमें किसी की कमी नहीं है, बट फॉर अस देश कम्स एट द लास्ट। देश हमारे लिए बहुत बाद में आता है। एंड शायद मेरे दिमाग में उस समय वो चीज है कि देश कम्स फर्स्ट है ना, देश के लिए पहले करना है। ठीक है, सैलरी आई हैव टू टेक अ कट डाउन,
and no problem, I will survive for this month. I started my own this company, and today I'm very happy that I've been recognized by SOCHAM and all people that the best startup of the year. No, great धीरज, great. I think आपने बिल्कुल एक ट्रू लीडर की तरह प्रूव करा है. I'm sure आपके पीछे भी लिखा हुआ है believe in yourself. So you really are setting an example for the people and the community out. बस इसमें एक थोड़े से challenges हैं जो I been keep talking to SOCHAM that there are, yes, a government is taking lot of steps, government is talking, Modi ji is taking lot of steps, वो right steps हैं, but reality में ground में when you move ना, it is not that easy, it is very difficult, it is not that easy. So जिसके ऊपर जितने भी industrialists हैं जो already those who have grown up, they have big fundings and everything. We need to have a right setup on ground also. हमारे पास वो setup proper available. Correct. This I will come on this point later because आपने बहुत ही अच्छा एक point बोला, मैंने note करा. आपने बोला setup और ecosystem. तो मैं इस पे आता हूँ, but पहले हम अपने और eminent panelist का भी एक व्यू पॉइंट लेते हुए चलते हैं और फिर आगे एक इसको अच्छा सेशन लेंगे. तो कमिंग टू यू डॉक्टर विशाल, आप कैसे देखते हैं ये जो भी डॉक्टर सुमित ने बोला कि लीडरशिप चेंज हो रही है, धीरज ने बताया कि yes he took some decision, he took some belief and he worked for the nation. So आपको क्या लगता है ये जो चेंज है, क्या ये चेंज लोगों को बदल रहा है या हम अडैप्ट नहीं कर पाए इस चेंज को? See, I believe there was a very good takeaway from from Shri Kirti Azad's speech of 4 Ds. 4 Ds, yeah. But now, for a good leader, you need the 5th D, that is dynamism. Great. And you need to continually dynamically change yourself as per the changing ecosystem. And for that, the COVID was a very good example that whenever there is a change, the leader needs to be visionary that what is going to be the change in the business ecosystem and the demand and supply and consumer behavior, and accordingly transform that vision to your people, such that people and all the stakeholders remain happy. So that thing. And secondly, our panelists were saying that business leaders should not be like a boss's man kind of thing. So when we play football or cricket, so when on ground, everybody is equal. So leaders should understand that we are all equal in the office or in all the equal system. Yeah. So we are all working for same goals. Goals cannot be divided. Maybe I'm sure Ispe, we would love to hear from Dheeraj once we talk to Dr. Pramod ji, and Dheeraj, we would be very excited to learn from your story and winning the award, which is in such a short span. As a true leader, it will be quite inspiring for many. So we will come here. So taking to you, Dr. Pramod ji, what do you advise and आप इसको कैसे रखना चाहेंगे? अगर मैं पूछूं कि सर आप कोई top 3 points बता सकते हैं from a leadership perspective जो इस changing time में हमने 4D से हम लोग 5Ds की तरफ भी गए, हमने अपने सारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स को भी सुना कि उन्होंने अपने टाइम में कैसे कैसे अच्छे काम करे, कुछ पुराने एग्जांपल्स भी सेट करे. आप इसको आगे कैसे इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे लीडरशिप स्टाइल के ऊपर? प्रमोद जी, वी कांट हियर यू, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को. प्रमोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपका शायद ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है. अभी भी नहीं हुआ कनेक्ट. So we will come back to you, Pramod ji, पर आप ट्राई करिएगा, बीच में आप रेस कर दीजिएगा. So coming to you, Dheeraj, आप थोड़ा सा बताएंगे like how was it easy to take that call? I am sure it would not be, but what compelled you and what are the top 3 things जो आपने अपने दिमाग में रखे इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए और बिल्ड अप करने के लिए? अगर आप शॉर्ट में 3 टेकअवेज हमारे ऑडियंस के लिए बताएं. Dheeraj, to you. Yeah, yes sir. Sorry, because of the internet issue मैं सुन नहीं पाया आपने क्या बोला. Okay. I'll repeat. आप top
3 कुछ टेक अवेज एज अ लीडरशिप, आपने जो लीडरशिप क्वालिटीज डेमोन्स्ट्रेट करी, इकोसिस्टम को बिल्डअप करा, आपने बताया कि काफी इंफ्रा है, स्कीम्स हैं और उसके बारे में लोग पूरा जानते नहीं, तो आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या टॉप 3 पॉइंट्स रखना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। इट इज माई व्यू, दिस इज व्हाट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मे नॉट बी एप्लीकेबल टू मेनी पीपल बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इनके पास अलग अलग अपने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट, हम बात हरदम करते हैं अपने पर्सनल अचीवमेंट्स की, अपनी पर्सनल गोल्स की, हमें क्या करना है, कैसे अचीव करना है, विच इज ट्रू एंड एवरीबडी हैज अ राइट वो सब जानने की। मेरे हिसाब से मे बी मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है तो या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो मेरे लिए वो कंट्री वाला बहुत पहले आ जाता है। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग, सो मेरे दिमाग में आता है कि हाउ इट विल इम्पैक्ट कंट्री या सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। सेकेंडरी कम्स कि व्हाट आई विल अचीव फ्रॉम इट, वो ठीक है। एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू डू, मनी इज द साइड इफेक्ट, है ना। आप जो भी करते हैं उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट आपका पैसा होता है। So you will achieve money, you will achieve success, you will achieve everything you want to do. But end of the day, it should have, इसका कुछ एक इतना सा impact society पे होना चाहिए, इतना सा impact इसका country पे होना चाहिए, and people should take, they should, your employees, your friends, your family members should be, what do I say, कि वो उनको थोड़ा सा एक वो आपके ऊपर क्या कहते हैं ना, गर्व महसूस होना चाहिए कि यार आप एक अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। सो वो गोल मेरा क्लियर था। सो आई लेफ्ट माई जॉब और इट वॉज नॉट इजी कि आप एक पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे जॉब्स नहीं अवेलेबल हैं, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी सेड यार तू क्या पागल है, तू नौकरी छोड़ रहा है इस समय पे। आई सेड फॉर मी, मेरे को क्लियर है कि क्या करना है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज व्हाई मैंने अपने पीछे भी लिखा हुआ है कि अपने पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन से वो कहते हैं ना, सबसे पहली जीत आप अंदर से जीतते हैं, बाहर आप बाहर वाली दुनिया से जीतते हैं। तो डॉक्टर विशाल ने उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा है 5th D, बट आप वो 5th D अप्लाई कर रहे थे, बट डॉक्टर विशाल, थैंक्स टू यू, आपने ऑडियंस के लिए उसको एक अच्छा नाम दिया एज अ डायनामिक। वो विश्वास होना जरूरी है आपको अपने ऊपर। हर छोटी सी सक्सेस स्टोरी बड़ी स्टोरी बनती है ना। तो वो शुरुआत बहुत छोटी दिखती है, मे नॉट बी कि बहुत सक्सेसफुल हूँ, आज बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ओके, बट फॉर मी दैट coming 10 years are more important, कि आने वाले 10 साल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई बिलोंग टू, एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ जो पूरे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलोंग्स टू JNK। ओके, आई एम बॉर्न इन जम्मू, बॉट अप इन आर्मी बैकग्राउंड। सो मेरे को पता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर स्किल अगर JNK में डेवलप कर पाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कुछ भी एक छोटा सा इम्पैक्ट भी कर पाते हैं कि वहां पे रोजगार मुहैया कराया जा सके लोगों को, इट विल नॉट इम्पैक्ट, वो छोटा सा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट में नहीं लेके आएगा, वो पूरे हिंदुस्तान में इम्पैक्ट लेके आएगा। सो आई हैव दैट ड्रीम एंड विजन, आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो बिलीव इन योरसेल्फ। बाकी तो आप सभी जानते हैं, डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। नहीं, आई एम श्योर ऑडियंस के साथ साथ हम लोग भी सब आपके संग जुड़े हुए हैं। मनोज जी, am I audible now? जी प्रमोद जी, वी आर कमिंग टू यू नाउ। जी, नो परफेक्ट। नो, सो प्रमोद जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, या एक थोड़ा सा एडवाइस करिए ऑडियंस के लिए कि इन दिस चेंजिंग टाइम के बारे में हमने सुना, डॉक्टर विशाल गेव अस सम गुड इनसाइट, डॉक्टर सुमित गेव अस वेरी गुड इनसाइट दैट लीडर को पहचानने भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप खाली ये सोचो कि वो बॉस था, हिटलर था। काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने सुने, तो हम आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं फॉर द ऑडियंस। आप उसको कैसे रखेंगे कि इस चेंजिंग टाइम में how leaders should react, or what are the qualities one should go for? At the outset, I want to thank ASSOCHAM for getting me into this program. I've been a professor at XLRI for 10 years. So I've lived in Jharkhand for 10 years. Great, sir. We have been through a great distress during this COVID period, and which triggered a debate between humanism and economy, the business and humanism. Leaders have been faced with a big challenge of being a decision maker or being an optimist and humanistic communicator. They have been faced with the big challenge in this period. If I look at leaders as a decision maker,
who want to rely on cold calculated data analysis trends and think of business economics, growth, cost on one side, and on the other side, the social agenda. Now let me make a very important point. When we began this COVID, there was every forecast which said India will be in great trouble if pandemic spreads in India. It will not have the ability to cope with it. It doesn't have the infrastructure to cope with it. Now, I still, I remember forecast of the London Business School professor, which I usually disagree with. I want to emphasize to all leaders as decision makers one important. Use data, information as support. Don't be victim of data. You don't need to be victim of data. And I think India's response to COVID, has been one of the biggest steps in that direction. So, converting the appearance of an issue into an optimism, into an optimistic future, giving a new structure to the issue, new look to an issue, is a very important issue in leadership communication. And I think that's something which we have demonstrated. Great. So that's point one. Maybe if I can add one more point. Sure. Point two is learning how to drive an unpredictable road. Okay, that's a good one, Ji. We don't know what's future like. Every time we say, okay, now we are getting better, we have something else happening. So, one needs to be very consistently observing short-term changes and set a series of short-term goals towards a bigger objective. One can't just talk about a big objective and miss out on it all, and which would look like a fancy story, but we would not make a headway. So towards a bigger destination, a series of short-term objectives. We must balance when to speed up, sure, and when to slow down. That's a point too that I want to make, and I want to make third point at this point in time is leverage your network for mutual benefit. Okay. Leverage your network for mutual benefit. It's a mantra of the day. Be it your customer network, like today Amazon says, okay, they want to have a payment gateway. So what is the strength of Amazon? Millions of customers. Correct. So correct, Dr. Prabhu. If I summarize, like आपने बहुत अच्छे points बताया that we should not be the victim of data. We should learn to drive the unpredictable road the way things are changing and it is moving further. And then you said that, okay, it's all about leveraging network. Dr. Sumi, would you like to add something on the points of unpredictable road? I'm sure आपने पीछे jobs के बारे में बात करी, because job एक ऐसा scenario था market के लिए unpredictable था. लोगों को ये नहीं था कि हाँ देख रहे हैं, but suddenly लगा अरे चली गई. So आपको कैसा लगता है कि वहां पे लीडर को कैसे एक्ट करना चाहिए या कैसे अपनी टीम को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मैन पावर और टीम का साथ में रहना. Right. See, basically, I think the right leader is a person who is creating more leaders, not a followers. हमारे पास right leaders, right bosses होते हैं, तो I think companies independent होते हैं. तो मैंने देखा है जो employees को निकाला गया था, कहीं ना कहीं कंपनी ने ये समझा कि कम एम्प्लॉय से भी कंपनीज को रन किया जा सकता था. बिकॉज आई डिड सर्वे, बिकॉज आई एम अ पीएचडी, सो आई डू सर्वे अलग. सो सर्वे में समझ में आया कुछ रेस्टोरेंट जो 150-200 स्टाफ रखते थे वो आज 75 में काम कर रहे हैं. 75 स्टाफ से, मतलब इट मीन 50% स्टाफ रिड्यूस किए, बट स्टिल दे आर हैविंग द सेम प्रॉफिट व्हिच वाज प्री कोविड. सो अंडरस्टूड वन थिंग कि 50% कॉस्ट में भी काम निकाला जा सकता है.
तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का ये इशू था कि उनका एचआर टीम सही काम नहीं की। अगर एचआर टीम को पता रहता कि एक एम्प्लॉय का कैपेसिटी कितना है, तो आई थिंक उसको राइट वे में यूटिलाइज किया जाता। माइट बी अभी उन्होंने जो इंडस्ट्रीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द करंट एम्प्लॉयज बिकॉज इन्होंने ओवर टाइम किया। एंड आई थिंक people should contribute to the growth of the industry, not for themselves or only for the company. If they are contributing for the growth of the entire industry, if the industry is growing, there are more people who can get employed over there. So ये बहुत जरूरी है। And a situation like pandemic gives you the you can understand the limits. You can exceed like where you can do, because बहुत सारी कंपनीज जो कोलैप्स हुए हैं, कहीं ना कहीं वहां पे राइट लीडरशिप की कमी थी। तो इसका ना कंपनी, और जो कंपनी इन्होंने बहुत केयरफुली पूरा सिचुएशन हैंडल किया, दे हैव ब्राइट फ्यूचर नाउ। बिकॉज अगर इफ आई से देयर इज मोर देन अराउंड मिलियंस ऑफ कंपनी वुड क्लोज डाउन, इट मीन वो कहीं ना कहीं वो रिस्क में थे बहुत पहले से। और अब जो कंपनी सर्वाइव करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज गोना बी यूनिकॉर्न कंपनीज ऑफ इंडिया। ओके, आपसे डॉक्टर सुमित ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला मैंने, और सुनने मतलब समझ में आता है। आपने बोला कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं दैट इवन लीडरशिप इज इवॉल्विंग, लीडर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब लीडर्स को खुद नहीं पता था, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करी, बेनिफिट्स निकले, ऑप्टिमल ग्रोथ आ रही हैं। तो जो चेंज है, ये जो सिचुएशन था, इसने लीडरशिप को भी बहुत चीजें सिखाई, या उसको हम कहीं वर्ड दें कि कोई कैपेसिटी बढ़ी या सिस्टम बढ़ा। तो यहाँ पे डॉक्टर विशाल, आई लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आप इसमें कुछ जैसे आप एक सिस्टम चला रहे हैं, कोई आप अपनी प्रैक्टिकल सिनेरियो को लेते हुए कुछ हमें आप एडवाइस या गाइडेंस करेंगे कि यहाँ पे लीडरशिप कैसे चेंज हुई, या क्या चीजों को आपने दिमाग में रखा, और कैसे आपने अपनी बॉटम लाइन, टीम ग्रोथ को मोटिवेट रखा? Dr. Vishal, we can't hear you. Sorry. Yeah. We believe normally as a general fundamental that customer is king. Okay. But ideally, employee is king. Great. Because one employee makes 10 happy customers. And this is a chain. So leave the employees to leave the customers to the employees. Keep your employees happy. And employees are the people who can sit beside you and have the same facility as the promoters have. Then the company will fly. So आप क्या ये बोल रहे हैं कि that leader has to change his personality and traits also? Is that what your intention is? Leader should understand that he is delegating his own power to employees and dividing. So basically, the concept is to divide and multiply. So that's a good one. Yeah, so विशाल जी, आप एक बुक लिख सकते हैं, कोट्स फॉर लीडर्स। आपने मतलब 15 मिनट में काफी सारे की पॉइंट्स दे दिए हम सब लोगों को, और धीरज जी ने भी कुछ ऐड करा है उस पे। Yes to you, Dr. Vishal. What we have done is we have divided the roles within the organization and to multiply the results. And those roles have been given to the departments, where the functional departments need not to come to management, and they can take the key decisions on their own. So ultimately it increases the results. So point is, it increases the efficiency. So leaders should think how to increase the efficiency, and there should not be a bottleneck at the management side. Okay, great. We are talking about transformation. So we should think about vision and the transformation. We were listening to Madam Shri Ansuya ji, and she told about some leaders from Chandragupta Maurya to Modi ji. So I think Maurya Enterprise was the first emperor to bring coins, currency in the world. And Modi ji was first person to demonetize it. Okay. So आपने कहा सर्कल पूरा हो जाता है लाइफ का। You're saying the circle gets completed. So that is the need of vision of what to do when as a transformation. In 1970s, I remember in 1970s, I read we got the first batch of penicillin imported from Europe. And now Europe is buying vaccines from us. Correct. So this is how vision is transformed by way of leadership.
So leadership is built. It is gradually when we focus on our strength, key strength, and then focus and try to nurture it, then gradually we can definitely improvise and get to next year. Great, great, Vishal. I'll take from a lot of your great insights. I'll pick up one line, which is divide and multiply. That's a brilliantly said. So I'll go back to Vikrant for a minute. Vikrant, are you there? Yes. Okay, great, Vikrant. Vikrant, first we would like to congratulate you for the award you have won today. That's great. Kudos and acknowledgement from all of us. And we would also love to learn from you. जो आपने कुछ मेंशन करा, आपने प्रोबायोटिक्स, आयुर्वेदिक, सारी चीजों पे काफी चीजों पे बात करी. आप उसमें कुछ लाइट थ्रो करेंगे फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव दैट इस चेंज ने और लीडरशिप ने क्या सिखाया इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ एसोचैम पूरी मैनेजमेंट को और जितने भी आज होस्ट कर रहे हैं फॉर इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए. रहा है वो अभी तक यदि मैं अपनी लाइफ को एक सिनेरियो में डालूं तो बफलो टू फ्लाइट रहा है. गांव से निकल के मैं आईसीआर का पार्ट रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ के फिर मैंने 2011 में एनडीआरआई करनाल यानी कि आईसीआर का एक प्राइम इंस्टीट्यूट है हमारा. मैंने वहाँ टॉप किया आईसीआर में जब मैं पीएचडी में एनरोल्ड हुआ. उसके बाद हमने एज ए बिजनेस में पीएचडी के बाद बिजनेस में स्टार्ट किया कि लैब टू जो फील्ड है, क्योंकि मैं देखता था कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एनालिसिस है, रिसर्च है, वो समहाउ थीसिस में ज्यादा रहता है. थीसिस से वो फील्ड तक नहीं आता. लैब टू फील्ड तक का जो था और जो आपका लैब से स्पून तक आने वाली बात मैं करना चाहता हूँ. तो वो उसी के सिनेरियो से मैं आगे बढ़ा और चीजों मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जिंदगी में एक ही रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है. एज ए पर्सनली मैं यदि बिलीव करूं, जैसे धीरज सर ने भी बिलीव इन योर सेल्फ, ये सबसे बड़ा मेरे लिए भी रहा है. क्योंकि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ना और वैस वाला वो उससे लास्ट में आप फ्लाइट तक जाना, तो अपने आप में वो जर्नी रही है. राइट. फिर एज ए फूड साइंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे हमेशा ट्रेडिशनल फूड पे मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की है. ट्रेडिशनल फूड यानी कि योर जीन, यानी कि आपके जीन भी आपके ट्रेडिशनल फूड को ही लव करते हैं. ओके. कि जो वेदर है, जो कंडीशन है हमारी, तो सेम लाइक दैट जो इकोसिस्टम की बात हो रही थी बिजनेस में, मुझे लगता है सारी हर इकोसिस्टम है, चाहे वो आपका पर्सनली हो, बिजनेस का हो. पैंडेमिक सिचुएशन में हमने एग्जैक्टली किया क्या कि हमने अपने लीडर्स को, यानी कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड थे, उनको अपना जो 10% हमारा प्रॉफिट था उसको हमने एक्स्ट्रा बांटना स्टार्ट किया. कि उनके इस सिचुएशन का मुझे भी नहीं मालूम था, आई थिंक आप सब लोगों को मालूम नहीं था कितना लंबा चल सकता है. तो हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय को दिया, निकालने की तो छोड़िए, हमने एक्स्ट्रा दिया उनको कि हम इसके लिए एक्स्ट्रा उनको प्रॉफिट देंगे. और हमने 2-3 चीजें ये भी की, जैसे सैनिटाइजर और हम बात करें मास्क, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने जो एसोसिएटेड पर्सन थे, उनको फ्री में दिए कि एग्जैक्टली हम कोई ऐसा इमरजेंसी को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो वहां से कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम है कि वो निकल के आया कि हमारी जो ग्रोथ रही वो इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमने 3x ग्रोथ लिया है, कि हमारा जो टोटल ग्रोथ रहा है वो 3 टाइम बढ़ गया. बट हमने बेसिकली चेंज क्या किया, मेरा एक ही रहा कि नेचर के साथ यदि आप छिड़खानी करेंगे, कुछ ना कुछ वो आपके साथ छिड़खानी करती है. तो हमने प्रोडक्ट में भी मेरा हमेशा रहा है कि मनोज जी, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट आपको भेजूंगा जो मैंने स्पेशली अपनी नॉलेज से डिजाइन किए हैं. जी. हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जिसका पेट साफ है उसको बीमारी नहीं होती है. तो मैंने सबसे पहले फोकस किया कि एग्जैक्टली हमने गट हेल्थ पे काम करना चाहिए. अभी आप बात करें आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए गट के इकोसिस्टम को बैलेंस करना है. गट के जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उनको लीड करने की जरूरत है. और वही एक स्टडी जो बोलती है, हमारी रिसेंट जो नेचर में पब्लिश्ड है,
वो ये बोलती है कि एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक और डाइटरी फाइबर, जैसे कीर्ति आजाद साहब ने भी बोला था कि डॉक्टर साहब ने बोला कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक उनको चाहिए खाने के लिए, तो वो डाइटरी फाइबर को ही बेसिकली प्रीबायोटिक कहते हैं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, मैं आप लोगों से भी यही एक एडवाइस है, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको लाइफ स्पैन हेल्दी के साथ साथ मतलब आपको एक लंबा स्पैन भी दे सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से हम बूढ़े तो हर किसी को होना, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस, पर खुशियों के साथ बूढ़े हो रहे हैं या बीमारियों के साथ, दैट इज द मेन डिफरेंस जो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ। तो एक हैप्पी एजिंग कॉन्सेप्ट हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हैप्पी एजिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आप सिचुएशन में देखेंगे, जैसे कि आज पैंडेमिक में सबको इम्यूनिटी बेसिकली इम्यूनिटी हर किसी के पास है, बट किसी ने इसको वीक कर रखा है, किसी ने इसको स्ट्रॉन्ग बना रखा है। हमारी मिट्टी में सारे के सारे बैक्टीरिया हार्मफुल और पैथोजेनिक नहीं होते। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी लीडर है हमारी सॉइल में है, जो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर और ये सारी चीजें मेरा हमेशा रहा है, वैसे मैं मिसलीड नहीं करना चाहता, बट मेरा मानना है कि हेल्दी बैक्टीरिया को भी मारता है, इसलिए आप सबसे अच्छा है कि अपने पानी से हाथ धोएं और अपने जी। मेरा तो लैब में ही ज्यादा रहा है, मैं फ्रंट फुट पे ज्यादा नहीं रहा मैनेजमेंट में। तो लैब से फील्ड तक का कैसे हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, नेचुरली चीजों को हम कैसे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग सेफ्टी वाइज लोगों की बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, यही मेरा रहा है। नहीं विक्रांत, बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने। दो तीन चीजें बहुत अच्छी बोली। एक लैब टू फील्ड वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक अवे, और एक जो डॉक्टर प्रमोद ने पीछे मेंशन करा था विक्टिम ऑफ डेटा, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा कि ग्राउंड की रियलिटीज डिफरेंट हैं और अंदर डिफरेंट हैं। और यहाँ पे मैं डॉक्टर सुमित आपके पास वापस आता हूँ, बिकॉज आपने मेंशन करा कि आप काफी एनालिटिक्स करवाते हैं और रिपोर्ट्स पे और मार्केट के नंबर्स आंकड़ों पे काफी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। मुझे लगता है कि काफी ग्रेट लीडर्स हैं हमारे बीच में, जो सारे लोग अपनी ग्राउंड की सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे डॉक्टर विशाल ने अपने कुछ ऑनगोइंग चीजें बोली, धीरज पे भी हम वापस जाएंगे। उनका एक पॉइंट था जो उन्होंने ग्राउंड के लिए बोला कि सेटअप पे मैं वापस जाना चाहूंगा धीरज। बट उससे पहले मैं डॉक्टर सुमित आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जब हम ये बोलते हैं एक सिनेरियो को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल लेना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि देखिए जॉब सिनेरियो भी है और सारे एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकते और सारे जॉब भी नहीं कर सकते। इसके बीच में शायद एक बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि देखिए सारी दुनिया एंटरप्रेन्योर नहीं है। और एक कहावत भी है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन ड्राइव्स 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। इसको अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट भी करो तो आंकड़े बहुत रियलिटिकली बहुत डिफरेंट है। आप में कहीं कुछ ऐसा सर्वे आप लोग करते हैं या कुछ करिए या बताइए, थोड़ा रोशनी दीजिए। मेरा मानना है कि क्या माइंडसेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों का, इंडिविजुअल का। Okay, I think everyone doesn't take risk in their life. Okay, entrepreneurs are a person who take a huge risk and move ahead. नहीं तो क्या आप रिस्क को लीडर से कैसे कनेक्ट करना चाहेंगे? Like how do you put a quality of a leader as a risk? Or जी, I think because the maximum employees who are into job, somewhere they are looking for job security. Because I'm a person who used to work for Air India, जो एक सिक्योर जॉब था, जिसके आप निकलना नहीं चाहता था लाइफ में, अर्निंग इन लैक्स, और अचानक से उसको बोले कि एक स्टेप डाउन करो, बिजनेस करो, पर गारंटी कुछ नहीं है कि इनकम आएगा या नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज का। पर अगर कोई लीडर अगर उसको उतर रहा है एंड ही इज श्योर, और अगर वो चैलेंज लेता है कि चले ना चले, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू दिस इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री को बढ़ाऊंगा मैं, तो यही रीजन से एक लीडर इंडस्ट्री में एंटर करता। से बिकॉज वी आर इनटू एविएशन बिजनेस, हम लोग पैंडेमिक से पहले प्राइवेट चार्टर्स बहुत करते थे, इलेक्शन ड्यूटीज में हेलीकॉप्टर्स हमारे लगते थे। बट जैसे ही पैंडेमिक आया तो हमने ये सोचा कि क्या हम कंट्रीब्यूट करें ताकि इंडस्ट्री में कुछ मिले। तो हमने एक चीज समझा कि इवैक्यूएशन फ्रॉम अदर कंट्री इज अ मेजर पार्ट राइट नाउ इन द एंटायर कंट्री। हमने इनिशिएटिव लिया, हमने एयरक्राफ्ट लीज किया, दैट टू बी बिगर जंबो जेट्स, और हमने कतर और सऊदी से लोगों को इंडिया वापस लेके आना चालू किया। पूरे पैंडेमिक में हमने अराउंड 5000 लोगों को जिनके जॉब्स गए अब्रॉड में, जिनकी जॉब गए, दे वर इन द स्ट्रीट्स, दे वर हैविंग नो शेल्टर,
हम उनको वहां से वापस इंडिया लेके आए. Government has supported us, given us the permission to take off from India and come back from there. आधे लोगों के पासपोर्ट घूम चुके थे, किसी लोगों के पासपोर्ट एम्बेसी या गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था, उनको परमिशन नहीं था वापस आने का. तो somewhere we have started contributing to the humanity. और वापस लेके आए उनको, and we feel so great now कि हमने 5,000 लोगों को जो अब्रॉड में जो स्टक थे उनको वापस लेके आए. तो आई थिंक जब हमने इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया, और आज ऐसे टाइम है कि पैंडेमिक के बाद वी यूज्ड टू हैव अराउंड 4 ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूट किया, अब हम 16 हैं. पैंडेमिक में हम बढ़ गए, 4 से 16 हो गए हम लोग. तो समवेयर आई फील प्राउड कि ये इसलिए हम बढ़े बिकॉज हम इंडस्ट्री को दिए, इंडस्ट्री बढ़ा तो हमारी रिक्वायरमेंट आई और हम वहां फिट हुए जाके. नहीं, बहुत अच्छा. आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल. एंड देखिए, मतलब आपकी बातों से वो पैशन से भी दिख के आ रहा है कि वो एज अ टीम और एज अ लीडर आपने उसको ग्रो करा, and it has really add on. And opportunity, I think, because I should say my company have 95% women as a staff. Oh, okay, that's one more. And I think they are the people who have multi-talent. Like, if I'm not doing racism or something, but they are the people who can do multiple jobs, handling a home as well as handling a company. So they are the people who can handle both balance. आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि कल ही वुमेन्स डे निकला इसलिए आज आप बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं. On a lighter note, no, we respect your viewpoint. Right, but this 95% stuff we are maintaining from very long, from the first day, because we are here in the industry for past 8 years. But still, we found everyone have a quality. Even we have handicaps, like who are differently able. They are the employee of the company. There are some people who are not able to hear, they are not able to speak. But we train them and we give them the platform. Because everyone have a rights to live in our country. Correct. So even they have a rights, like they have a leadership quality. But you have to understand the way they communicate with us. So that's what we are doing, No, great, Dr. Sumit. I think a lot of good insights आपने दिए, where you spoke about many attributes. So going back to you, Dr. Pramod, एक आपने word use करा था, which was a very nice word and I think a very relevant word in today's scenario, unpredictable road, as you mentioned. So as a leader, because that's where even Dheeraj, Vishal, everyone mentioned that if you are my leader, we all are looking to you as a leader. और हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल रोड है, तो जितना इतना लोगों का फेथ है उस लीडर पे और वो लीडर एक रोड को चला रहा है या उस पे वो अपनी पूरी व्हीकल या टीम या ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहा है, सो आप क्या कुछ और क्वालिटीज के बारे में या इंडिविजुअल माइंडसेट पे थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट्स को और रोशनी डालेंगे जिससे हम थोड़ा सा उसको बेटर समझ पाए? I think in this new world we'll have to redefine our perspective towards the world. One important thing that we must consider: when we will grow, we will have jobs. When we will grow, we will have jobs. If we will not grow, we will not have jobs. Okay. Let me go back to, when we had subprime crisis in 2008. One of my American friends, I was an entrepreneur, he's also an entrepreneur, shared with me a very interesting thing, which he was communicating to his employees. When he was, and where he said, let's define capitalism and socialism. Okay. And remember, wealth creation should be an objective. When we are in business, we are in business related to personal life. Wealth creation should be an objective. So I find a very interesting definition that guy promoted among his. Correct. Okay. Think capitalism is distribution of wealth among fortunate few. And socialism is distributing poverty equally. Okay. Okay, great. An important point that I want to make here is that, look, we will have to create more wealth where people have greater opportunity to seek wealth. Okay. We cannot have just charitable humanism. I was also looking at some of the observation. I can share with you that as a business, we need to remain globally competitive. Okay, we need to remain globally.
That's the way. That's the only way out. Okay. Now, if you look at in this environment, there has been completely new definition of performance standard. For example, if you look at your work from home, it is driven by a defined performance standard. It is not random. At least you do something at home, from home. So, what is the change? The change is when you talked about your work from signing in to signing out at your work. And if a job was at the point of signing out, if the job was left half done, you said, I'll do it tomorrow. So today, when you look at work from home, it's a assignment-based performance. It's not the time-driven performance. It's not defined by your login and log out time. It's defined by assignments to be completed for the day. So, entirely new approach to seeking more productive outcome. And number one important thing. That sometime back, I was reading something somewhere, and Netflix CEO made a very important point. He said, look, we need a talent which makes my AT. We can't succeed with a BT. We'll have to, as leaders, we have to learn to create an AT. You know, like sometime back, Dr. Vishal was saying, talking something about, I leave it to my key senior business leaders. I need a AT. We need a AT. And how to create an AT in a business enterprise will have to be a mandate of a leader. And I'm going to limit myself to the business enterprise. Of course, there's some how to and redefine meaning of talent for my is an important mandate to modern business. Pramod, we lost you at the last word. I'm saying how to create an AT is a mandate for a modern business leader. No, great. You brought a lot of good things like wealth creation and the overall productivity. So, Dheeraj, would you like to add here from a perspective, because I would love to know how you handled the sentiments. I will tell you why I'm asking this. Like you mentioned that you were heading a Chinese organization. With all due respect, like in this last couple of months with this change time, there were a lot of business connotations happening between India and China. There were a lot of growth also happening at the same point of time. And at that point of time, when you were heading an organization, which was a Chinese-based organization, I'm sure you were delivering it right. You had a team to handle. You had a different perspective. Now you are creating an own wealth creation, as Dr. Pramod said, and a lot of good things came up. So how do you feel that, how that journey was, and what are the things that you kept in mind when you did the switch over? Thank you so much, sir. And you're right. और एक डॉक्टर सुमित ने एक चीज बोली थी. I think he was talking about calculated risk, risk taking ability. And yes, that was a risk for me that time when I was switching from Chinese organization to own setup. It was not easy that time because pandemic hai, market mein business nahi hai, and at that time when you're talking about having your own setup, it is difficult, but end of the day nothing is difficult. It is up to us how do we perceive it and how कैसे लेते हैं. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं सर, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे आपका वो कस्टमर हो, चाहे आपका वो कस्टमर का कस्टमर, मतलब पीपल हु आर एसोसिएटेड विद यू, यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन देम, है ना. और उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए और आप पे उन पे ट्रस्ट होना चाहिए. वो कब होता है, जब आप सही कम्युनिकेशन करते हो और टाइमली कम्युनिकेशन करते हो. कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर एनी इंडिविजुअल, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कंज्यूमर हो. कोई भी ब्रांड क्रिएट करने के लिए या ब्रांड को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए
ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड सही कम्युनिकेशन सही टाइम पे होना, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पास होने चाहिए. So yes, I worked on that. I had a right communication with my people, and I understood what they wanted, what are their emotional sentiments, and accordingly we took decision, and we created this organization called VR1. And उसका नाम भी हमने VR1 इसलिए रखा था. I know it is difficult to pronounce, बहुत सारे लोगों को थोड़ा पढ़ने में लगता है वो WVR1 है या क्या है. VR1 came because I wanted people to unite together. We have to have together, है ना. So it is VR1 ताकि हम सब साथ हैं. तो वो साथ के चक्कर में कंपनी शुरू करी गई थी. बट वो चाइना मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है सर, मैं आपको बताता हूँ क्यों. येस्टरडे वाज वुमेन्स डे और हमारे टीम में बहुत सारी फीमेल्स हैं. वी हैव डायरेक्ट सेलर्स, बेसिकली वी बिलोंग टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और 90% हमारे विमेन्स हैं. एंड वी बेसिकली वर्क ऑन सैनिटरी पैड्स. सैनिटरी पैड्स हम लोग सैनिटाइजेशन और सैनिटरी पैड पे बहुत काम करते हैं. बट मेरी दुविधा ये है कि आज भी जितना सैनिटरी पैड मेरे को इंडिया में मिलता है सब चाइना से इंपोर्ट होता है. मैक्सिमम जो आज भी इंपोर्ट हो रहा है. व्हेनेवर आई वेंट टू दिल्ली और सम अदर स्टेट की मुझे कहीं से सैनिटरी पैड्स मिले व्हिच आर इट शुड नॉट बी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. मतलब बीट फ्रॉम यार किसी कंट्री से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, विद क्वालिटी और वो प्राइस उस प्राइस पे नहीं मिलता. तो आई थिंक इन इंडिया जॉब क्रिएशन के साथ वी टॉक अबाउट कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीडरशिप स्किल कैसी होनी चाहिए. आई थिंक as business owners and we all people who are into businesses, they also have a responsibility as a leader. So when government is delivering some points कि इस आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि मोदी जी ने अभी बीच में शेयर किया कि उन्होंने डिमोनेटाइज किया और करेंसी को बंद किया. तो somebody has to take that stance when मोदी जी saying कि हमें आत्मनिर्भर होना है. तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एंड बहुत सारी जॉब क्रिएशंस की जा सकती हैं, एंड वी कैन बी इंडिपेंडेंट ऑन मेनी सेक्टर्स. So this is from my side, sir. Great. No, that's very good. When you mentioned the points and you said as your indication was very much towards Atmanirbhar Bharat. Yes. उसको मैं यहाँ पे लिमिट करूँगा क्योंकि वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा वाइल्ड टॉपिक है और बहुत आई एम श्योर यहाँ सारे लीडर्स उसी के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली वी विल रिक्वेस्ट एसोचैम की जहाँ पे वो दोबारा कभी लीडर्स को बुलाएं और आत्मनिर्भर भारत पे हम दोबारा कुछ ऐड करें, बिकॉज ये तो एक ऑनगोइंग जर्नी है. आई एम श्योर इसकी डेस्टिनेशन अभी डिफाइंड नहीं है. तो जर्नी जो बढ़ेगी, सब लोग कुछ ना कुछ उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कैटेगरीज ऐड हो रही हैं, हम लोग ओवरऑल रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं. एज अ कंट्री हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, लीडर्स बहुत रोल प्ले करते हैं इसको आगे बढ़ाने में. डॉक्टर विशाल, कमिंग टू यू, जहाँ पे अभी हम ये कुछ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको कुछ लगता है कि एज अ लीडर कुछ एक विजन दिखना, कि कई बार कहते हैं ना कि नहीं, उस लीडर को ये दिखता है कि यार ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है या ये प्रोडक्ट की नीड हम क्रिएट कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ऐड करना चाहेंगे फॉर आवर ऑडियंस हियर? सी फार्मा सेक्टर में लोग देखते हैं कि डेटा में राइट डेटा एनालिसिस करके किस प्रोडक्ट में ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट होने वाला है और किस कंट्री में इसका डिमांड ज्यादा है, फिर उसका रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और उसको रिसर्च करके उसका ANDA या ओवरसीज में करते हैं. और फिर उसका तैयारी करते हैं कि जब वो ऑफ पेटेंट हो जाए तो उसको बाहर निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें. वैसे ही बाकी क्षेत्रों में भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कितना कंजम्पशन होने वाला है, क्या डिमांड होने वाला है, और रिसर्च पेपर लिखते हैं. उसके हिसाब से we can go for capacity building and correct. However, there was a very good question and you asked that why people are not much focused on entrepreneurship. Ji. And there was a very good example wherein Dr. Sumit said that he switched from airlines to his own academy, and then so there is one very good point here to add on. That the main thing that is driving the entrepreneurship is idea. Because that is the missing thing, idea. Okay. And many people don't know that they don't know. नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला. बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था that in today's scenario money is getting cheaper and idea is getting valuable. I'm sure आप ही ने बोला था. हाँ,
जो अपने appreciation में बोला था, money, see, as well as money is getting cheaper, so doing business is becoming more and more difficult, because the only thing to do business is to have a unique idea and proposition. And what drives entrepreneurship is a great idea. And problem is that in our education system, we don't nurture people to have ideas. They just do what their friends are doing. That's it. So, and then when they land up in the youth age, then the thing is either they don't know what that they don't know, and then then in that case, after that, some people say, I know that I don't know. Then only few will say that I know that I know. They become entrepreneurs. So यहाँ पे मतलब आप कहना चाह रहे हैं that clarity of vision is very very important. Yeah, I know that I know is very less. Correct. And I don't know that I don't know is very more. जी. So that is the basic reason. Correct. And so for see, when we talk about wealth creation is byproduct. If we have an idea and we invest on it and do workmanship, wealth is byproduct. It will automatically come. For instance, if I do farming, I sow the seeds, I do everything, and I harvest it, and I do water and everything, and I sit. Then yields are to come. There is nothing that can stop it. Correct. It is a byproduct. Sorry. But people think they'll make an Excel that okay, how much yield will come, and they'll not sow the seeds on time. Correct. नहीं, that's a very good point. Like I think हमने काफी अच्छे points cover करे. Dr. Pramod, आपने काफी अच्छे कुछ हमें benchmarking words दिए, like in terms of predictable road, victimization of data, mandates, proactiveness. Dr. Sumit, you added a lot of good things in terms of initiative, mindset, और एक वो calculated risk जिसे आपने खुद अपना एक example बताया, that was very very, I would say very very thought provoking and very very motivating to people. And coming to you, Vishal, I think that was a good insight. Like you graduated what Shri Kirti said from 4 Ds to 5 Ds, adding dynamism, and Dheeraj was a very good example. Vikrant mentioned good things. So here, I would like to put a question back to our session organizer. Like, yes, SOCM, yes, they have been doing great sessions. They are like celebrating a decade and contributing a lot to the industry. So Bharat, how do you feel like the way things are changing, the way leaders are adding, we all are talking about Atmanirbhar, we all are talking about revenue, wealth. आप एक बार SOCM के hat से, without hat of SOCM, आपको क्या लगता है that what, how the leader should work in the current scenario, or what should be his take on the market or the scenario where he is? We all know that it is. Bharat, we can't hear you. I think there's some network issue. There's some network, yeah. Bharat, are you there? So, am I audible? Yeah. जी, आप audible हैं, अभी आप audible हैं. So when we talk about this pandemic thing which has happened recently, one thing is for sure that the people who are knowing the art of unlearning, relearning, and learning. So this is something which we have to think as an organization, as a leadership, or lots of things, because see, we were doing events, conferences, now we are interacting through virtual platforms. So these are certain challenges. Network is definitely one of the challenge, but opportunity is we get an interaction to talk to people of the various regions. Someone sitting in Australia. So technology has to play a very new role, has to come in forward. So the art of unlearning and learning is something which we have to now focus on. So now before we are coming to closing this ceremony, I would request and invite Mr. Sumit Susilan, since he is here, to do a closing remarks for today's program. Thank you, Bharat ji. Okay. And I would also like to thank Mr. Manu Seth sir for wonderful moderation which he generally does for the SOCM program. So thank you very much. Thank you. Pleasure. Okay.
First of all, I would like to appreciate the chamber, association itself, because in this pandemic, the way the chamber came up through this WebEx platform, because we never thought that we will be able to speak in front of such a big leaders of our country. Association had created a platform through virtual meet. That is all thanks to go to Bharatji and our Roshan to coordinate the entire event, because I can see chamber is organizing event every week. Some other leadership program they are arranging. I appreciate their hard work towards contributing to the industry. And I would like to thank every members who are present today for making this event successful. Especially Manoji for your moderation. It was a really great way you have moderated the entire show, and extended it for 2 hours. It was a really nice. Didn't came to know it's been 2 hours got completed. And I would like to congratulate every award winners, because the award winners, as you have got the awards, and I think this is appreciation to you, and I think you should continue to lead the industry the way you led the entire past pandemic situation. I would like to see you in the next session also, in the award session, that you win the award again. Thanks a lot. Thank you everyone to contribute for this platform today. Thanks a lot. Thank you, Manoji. You were very good. And very nice program. I really want to thank Asochem for that. Thanks everyone. I think thank you, Manoji. Thank you. Yeah, really, it was great. And we had Kirtiji. He was saying that leader is born. I think everybody is a born leader. Only thing is the education and nurturing that leadership is very important. Because everybody is a precious stone by he is born. Only thing is we need to cut and polish and make him shine. Correct. Absolutely. So yes, it was nice talking to all the great leaders here, and I think आप लोग का जो इतना rich knowledge है, talent है, experience है, उसी से ये हमारा session engaging होता है और हमें बातें करने के लिए चीजें मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ. So thanks all of you. आपका तो वो नाम ही mind पे आता है. Anyway, thanks Bharat for having this great event. Great pleasure meeting you. Okay, ji. Thanks everyone. Nice meeting all of you. Bye. Take care.